Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 13th, 14th and 15th of September. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. In this video students, we are talking about the fast track immigration facility that has been launched at the 5 airports launched by Amit Shah, our Home Minister. Then we will be talking about Samudra Pradakshina, right? This is the first ever tri-service all-women circumnavigation from Mumbai, Maharashtra. It has been flagged off recently, right? Then we will be talking about an MOU that has been signed with IIT Delhi to promote sports science indigenous innovation in India. All these things and many more will be discussed in this video, so stay tuned with us till the end. If you are new here students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. As you can see him in the picture, he is Amit Shah, our Home Minister, has launched the fast track immigration facility at 5 airports in India. Now what this fast track immigration facility is, this will be a trusted traveler program, right? And if you are a frequent traveler, right, then with this particular facility, the immigration process will become easy for you. It will become fast for you. You don't have to spend more time on the immigration procedures, right? So here on 5 airports, we will be seeing this fast track immigration facility, right? Take a note of this, important. And 5 airports has been added to this list, right? Earlier, now the total number of airports that are having these fast track immigration facility is 13. Earlier there were 8 and 5 new has been added now. So now the total is 13. With this fast track immigration facility, the process will be coming down to just 30 seconds for the immigration. Initially, this facility was launched in July in 2024, and it was launched where? It was launched at the Indira Gandhi International Airport, that is in New Delhi. Correct? Take a note of this. Which are the new airports that has been added? These are the 13 airports, right? But which are the states where these new facility will be coming? It will be coming in Lucknow, UP. Then in Amritsar, Punjab. Then Kozhikode, Kerala. Trichupalli, Tamil Nadu. And Amritsar, Punjab, right? So these are the location where we will be seeing. So Lucknow, or one more, not Amritsar, fifth will be Trivandrum, Kerala. So Lucknow, Amritsar, Kozhikode, Trivandrum and Trichupalli. These are the 5 locations where this new fast track immigration facility will be coming into play. Earlier there were 8, now the total are 13 airports where this facility will be provided. Correct? Important. Also, if we talk about this is the registration portal where you can go through it, and after enrolling in this program, biometrics will be done, and foreigners regional registration office at that particular location, you will be seeing your biometrics done. And the registered travel, they can just scan their boarding pass at the airport at the e-gate, and the traveler's biometric will be auto verified at the e-gates also that are installed at the arrival and departure points of the airport. And after the verification process, the immigration clearance is granted, and all these things can now be done in just 30 seconds with this new facility. Around 3 lakh travelers have registered on this portal, and almost 2.65 lakh they have used the facility during travel. Right students, take a note of this. Moving on, next is Union Defence Minister, that is Rajnath Singh, has flagged off Samudra Pradakshina. This is the first ever TR service all women circumnavigation from Mumbai, Maharashtra. Right, this is the first ever, not TR, this is your tri-service all women circumnavigation sailing expedition, and it has been launched from the Gateway of India in Mumbai, Maharashtra. This expedition, as you can see it in the picture itself, it comprises of 10 women officers, and this includes 5 women officers from Indian Army, 1 women officer from Indian Navy, and remaining 4 women officers are from the Indian Air Force. Hence, we are saying this is a tri-service all women circumnavigation
exercise, right? Samudra Pradikshina. Very important, students. Directly question can be asked, and can be asked that the numbers also, that how many women were from Indian Army? 5. From Indian Navy, 1. And from Indian Air Force, 4. Right? This team, it will cross the equator twice and sail around 3 great capes, that is the Cape in Australia, in South Africa, and South America. Right, students? Take a note of this. If we talk about here, you can see world's first ever tri-service sailing expedition. What is the name? Samudra Pradikshina. Flagged off by Rajnath Singh, our defense minister. From where? From the Gateway of India. Next important question becomes the name of this vessel that we are seeing. As you can see it in the picture here, it is Triveni. This is the name of the vessel here, right? And 10 members here, from 5 from Indian Army, 4 from Indian Air Force, and 1 from Indian Navy. Right? And this expedition leader here is Lieutenant Colonel Anuja Varunkar, and expedition deputy leader here is squadron leader Shraddha P. Raju. So take a note of these things. Moving on. And what is the one term here? That IASV, it is your Indian Army sailing vessel, right? This is a 50-foot class A yacht, as you can see it in the picture here, right? It is indigenously built in Pondicherry, right? And this expedition for the next 9 months. Moving on, NCSSR, they have signed an MOU with IIT Delhi. What is this NCSSR? It is your National Center of Sports Science Research. This comes under the Sports Authority of India, under the Ministry of Youth Affairs and Sport, and they have signed a memorandum of understanding with IIT Delhi to promote sports science indigenous innovation in India. This newly signed MOU, it aligns with the Government of India's vision, that is Garv Se Swadeshi campaign, particularly within the sports sector. This will boost the sports science and indigenous innovation. And here a biomedical research laboratory was also inaugurated at the IIT Delhi campus. This will be supporting both able bodies and para athletes. So what is the main aim of this MOU? To promote innovation driven projects for athletes performance enhancement. This will provide knowledge sharing, and we know that now AI is in the picture and AI will be used here. Also here the working will be done on the injury prevention, athlete well-being and recovery solutions. If we talk about Sports Authority of India, who is the Director General here of Sports Authority of India? H.R. Rao. That is Hari Ranjan Rao. It was established in 1984. Right, students? Then Prayatan Mitra. That is Prayatan Mitra or Prayatan Didi. This was launched by Ministry of Tourism, and it is to promote responsible tourism across India. Next is TCS. They have signed a memorandum of understanding with CDSE, that is your Center for Development of Advanced Computing for India's sovereign cloud development. And here this will be speeding up the creation of India's sovereign cloud ecosystem. Right? We know cloud. What is the technology cloud? Where you can do everything online. You do not have to have any servers or database at in-house. That means you do not have to spend on it, or you can buy the services from the companies that are having these servers and these big storage spaces. You can just pay them for the service that you are using, right? So in order to develop such sovereign cloud ecosystem in India, TCS, they have partnered with CDSE. And students, if you remember, or if you have seen that Oracle, right, it has jumped their valuation by almost 40%, and Larry Ellison, the owner of this company, has become the now richest person. He has also surpassed Elon Musk. The reason for this is because AI will be using a lot of these cloud services now, right? So in order to have such system in India itself, so that the Indian companies who are working on AI, who are developing such large language models and working on such models of AI, they will be able to use this in-house system. Next is international affairs. Union Minister Dharmendra Pradhan has visited UAE recently from 10th to 11th of September 2025. This will be an important news, students. You will be learning a lot of this. First thing, remember, he inaugurated the first ever Atal Incubation Center hosted in an IIT at IIT Delhi campus, that is at Abu Dhabi. So question can be asked that which IIT campus is in Abu Dhabi? It is IIT Delhi campus, and at the IIT campus, the first Atal Incubation Center was hosted, right? Very important. And during this, 2 academic programs were launched at IIT Delhi, Abu Dhabi, that is Doctorate of Philosophy, that is PhD program in Energy and Sustainability, and BTech in Chemical Engineering, right, students? Then apart from this, remember, at the
IIM Ahmedabad, Dubai campus. So in Dubai there is an IIM Ahmedabad campus, correct? There he recently also inaugurated, or he marked the first overseas campus. This, or we can say that question can be asked, as I mentioned, that in Abu Dhabi the question can be asked that which IIT is there. So in Abu Dhabi, in Dubai, it can be asked that which IIM has been opened, or which is the IIM that is opening their campus. That is the first overseas campus of IIM Ahmedabad. It is in Dubai, UAE. So remember these two things. And recently it was, this Dubai campus was inaugurated during his presence. So two questions from here. First, Atal Incubation Center at IIT Delhi campus in Abu Dhabi was inaugurated, and second, IIM Ahmedabad campus was inaugurated where? In Dubai. Right. So apart from this, two things more. Remember, he also took part in a plantation drive, that is Ek Ped Maa Ke Naam initiative, that was at the Indian consulate in Dubai. Right. And there he planted the ghaaf tree. So this question can be asked. Apart from this, he also visited the BAPS Hindu Mandir there, and he also inaugurated 12 Atal Tinkering Labs in CBSE affiliated schools across UAE as a part of the Teacher Day celebration. Next, so here you can see he visited the IIT Delhi and inaugurated the first ever Atal Incubation Center there. Then Atal Tinkering Labs, that is 12 Atal Tinkering Labs in the CBSE affiliated schools in UAE. Then he also took part in the Ek Ped Maa Ke Naam initiative, that is a plantation drive. Then he launched the IIM Ahmedabad Dubai campus, right? This is also important. Moving on, students. Next is banking and finance. TCIL, that is your Telecommunication Consultants India Limited. This is a public sector undertaking, comes under the Ministry of Communication. It has signed a memorandum of understanding with Punjab National Bank to strengthen the IT infrastructure of the Punjab National Bank. Take a note of this, students. What this will do is the IT infrastructure will be better, right? Better services will be provided. There will be less lags in the services delivery, right? Apart from this, you will be seeing that more and more people will be able to access at a time. Sometimes we see that because of the maintenance issue or because of your heavy traffic, sometimes the website and the application, it shuts down. So all these things will be taken care of here, and better services will be provided with the digital transformation, and better data protection will also be provided here. Right. Apart from this, 4th edition of Semicon India was recently held. It was held at Yashobhumi, inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Then apart from this, remember recently 23 deals were secured between Tamil Nadu and Germany. Then apart from this, recently which drone recently got the DGCA certification for agriculture? It is PRYMA Aerospace Drone. Right. This is the company, and their aerospace drone by the name Arjuna recently got the DGCA certification. Next, Government of India and Asian Development Bank, they have signed $126 million agreement to promote sustainable tourism in Uttarakhand. So what is the amount of this agreement? It is $126.42 million signed between the Government of India and Asian Development Bank, and it is to promote rural development in Uttarakhand. Sustainable, inclusive and climate resilient tourism will be promoted here at Terry Lake area project. Right. So basic aim is to promote tourism. With this project, more than 87,000 residents will be benefited. And as tourism, we know that Uttarakhand is a prominent location for North Indians where they visit annually. And we will be seeing that the inflow of the tourism will be enhanced, better services will be done, waste management will be taken care of, disaster preparedness will be taken care of. Then if I ask you, students, recently which IIT has topped the NIRF ranking? NIRF rankings. So who topped the NIRF ranking? They were topped by IIT Madras. Next, IFC, that is your International Finance Corporation. This is the private sector arm of the World Bank Group. They have pledged $137 million as a financial support to the JBM Ecolife, right? And it is a subsidiary of JBM Auto. You must have seen that JBM Auto, this is the organization that makes your buses. You must have seen that in Delhi specifically, right? Blue buses are there, electric buses are there. So they are made by JBM Auto. You must have seen JBM written on the back of these buses, right? So IFC, they have pledged $137 million to JBM and Green Cell for e-bus rollout in India. So electric buses rollout will be done by them, and for that this amount has been granted. $100 million has been granted to JBM and $37 million has been granted to Green Cell,
right? Take a note of this, students. Important. And with this funding, it is expected that more than 4,000 electric buses will be rolled out across 37 municipalities and 8 Indian states and union territories. Which are the states that will be focused in the first phase here? Maharashtra, Assam, Gujarat, Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Puducherry, and Delhi will be in the focus here. Moving on, next is economy and business. ICRA, that is your India's credit rating agency, formerly known as the Investment Information and Credit Rating Agency of India. They have raised India's GDP growth forecast to 6.5%. Earlier, they were projecting that India will be growing by 6%. Now we are seeing a 50 basis point increase to 6.5%. Right, students? And one of the major impact is because of the GST rationalization. We are seeing that even in the auto sector, almost 1.5 to 3.5 lakh rupees has been reduced on the cars, and the automakers, they have given this benefit directly to the customers. So the prices of the cars have been slashed to a large extent. Moving on, Bharat Forge and UK Wind Racers, they have signed a pact to bring UAV in India. What is UAV? Unmanned Aerial Vehicle. So Bharat Forge, that is a forging and advanced engineering company, they signed an agreement with UK-based Wind Racers. It is an autonomous cargo drone manufacturer for the collaboration of deployment of unmanned aerial vehicle Ultra across India. This agreement was signed at the Defence and Security Equipment International, that is DSEI 2025, that is a global defense exhibition and conference that was held in London, UK, right? And this MOU that you can see here, or this agreement, what will this do is, this will focus on, first of all, it will be for 2 years, and it will enable both the companies, right? They can further enhance the development of also these UAVs in India also, right? This will be in the next phase. But remember, we know that India has banned that we won't be importing. These UAVs are basically drones only, right? So India banned that we won't be importing drones. We will be making these drones in India only, right? And hence we will be seeing that with this partnership, that technology transfer will be taking place. We will be seeing innovation between these two countries. And also, if you remember, India and UK, they have also signed a free trade agreement with a vision of 2035 in mind, right? So this alignment, this UAV is also a part of this here only. Correct. With this, we will be seeing that Indian Army's logistic capabilities will be benefited. Indian Navy's and Indian Air Force also, basically for all these three services, you will be seeing the logistic support will be provided better. Even with these drones, you will be able to have a surveillance also in the areas. Next is appointments and resignation. CP Radhakrishnan sworn in as the 15th Vice President of India. I repeat, former governor of Maharashtra, CP Radhakrishnan, has officially sworn in as the 15th Vice President of India and second highest constitutional office in India, right? That is the Vice President of India, correct? And he, now with this, he became the chairman of Rajya Sabha, that is the upper house of the parliament, right? So what you need to remember, first thing, that this oath is administered by the President of India, Draupadi Murmu ma'am, and this question can be asked, that oath for the Vice President of India is administered by the President of India, and it comes under which article? It is the Article 69. Then who is the predecessor here? Jagdeep Dhankad ji, he resigned because of health reasons, right? Then apart from this, if we talk about the other options or other articles that can be asked in the exam is, say for example, the question will be asked that Article 69 or 63 to 69, which these are related to basically Vice President's office, Rajya Sabha chairman position, acting president, election and oath, and many more. Then apart from this, if I ask you specifically, if targeted question is asked, that what is the Article 64? Right? What is the Article 64? So this Article 64, it designates that the Vice President, right, he is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. This is Article 64. What is 63 article? That is, there is a Vice President of India, right? Then Article 65A asks that the Vice President discharges the President's functions during the vacancy or temporary absence due to the illness. Alright. Then apart from this, one more thing, remember, if we talk about the position of Vice President, the person who is elected here or the candidate for the position of the Vice President, she should have completed 35 years of age, right? He should not hold any office of profit under the union government or any state government, right? What is the term of the Vice President of India? It is 5 years. It comes under the Article 67, right? And the oath, as we discussed, oath comes under the Article 69. So these are some of the articles also that you need to remember. Then comes Gujarat's Governor Acharya Devvrat, given the additional charge of the Maharashtra
governor. I repeat, Draupadi Murmu ma'am appointed Acharya Devrat, the governor of Gujarat, to the additional charge, or he has been given the additional charge of the Maharashtra governor. Right, this comes after the CP Radhakrishnan. He resigned after his election as the vice president of India. So another question can be asked that earlier CP Radhakrishnan, he was holding which position? He was the governor of Maharashtra, and now he became the vice president, and in his position who has been appointed or who has been given the additional charge here? So Gujarat's governor Acharya Devrat has been given the additional charge here. Right, students? Also, if we talk about him, Acharya Devrat, he served as the governor of Himachal Pradesh from 50th August 2015 till July 2019. Right, and currently from 22nd of July 2019, he is having the position of the governor of Gujarat. Moving on, students, FSIB recommended Ravi Ranjan for the post of Managing Director of State Bank of India. What is FSIB? Financial Service Institutions Bureau. This organization recommended Ravi Ranjan, as you can see him in the picture, as the Managing Director of SBI, that is State Bank of India. He will be succeeding whom? He will be succeeding Vinay Tomse. Next is Science and Technology, students. India's TASL and Spain's Indra commissioned 3D ASR Lenza N into the Indian Navy on the INS Mysore. INS is your Indian naval ship, right? So let's go one by one. India's TASL. What is this TASL? Tata Advanced Systems Limited. What is Spain's company? It is Indra, right? So these two company, and Indra basically it is a global aerospace and defense technology company. So India's TASL and Spain's Indra, right? They have commissioned 3D ASR. As you can see in the picture, what is this 3D ASR? This is your India's first indigenous 3-dimension air surveillance system. Air surveillance system, ASR. Right? It has been commissioned into the Indian Navy, and in Indian Navy also, at which INS it has been commissioned? This question can be asked. So it has been commissioned at INS Mysore. So multiple question. Which is the organization from India that partnered with Spain's Indra? That is TASL, Tata Advanced Systems Limited. Vis-a-vis that, which is the company with which India's Tata Advanced Systems Limited partnered with this for this 3D ASR? It is Spain's Indra, and it is for the 3-dimensional air surveillance system that will be commissioned in Indian Navy, and it will be commissioned on which Indian naval ship? It is INS Mysore. Right, students? One more thing, remember, this will has a detection range of up to 256 nautical miles. And the target here is to deliver 23 more such naval radars by 2029. Next is environment, students. New gecko species, that is Cartodactylus Vanarakshaka, right? It has been named after the Assam Forest Department. I repeat, Vana is basically forest. Rakshaka is the person who take care of it, right? So Cartodactylus Vanarakshaka, this is the name of the new gecko species that has been discovered after the Assam Forest Department, right? This species was discovered in the mountain forest of the Dima Hasao district of Assam. Then next is two new Asparagus species discovered in the Western Ghat. Asparagus, as you can see it in the picture here, right? So this is the name of the two new species that has been recently discovered of this asparagus, right? And if we look at the name of these species, what are these species? Here you can see these are the two name of these species that has been discovered, right? These are the two black fungus species that has been discovered here. Next is important day, students. National Forest Martyrs Day observed on 11th of September, and this day is observed basically to honor the unsung heroes who laid down their lives protecting forest, trees and wildlife. Right? When do we observe this? 11th of September. This was declared in 2013 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And one more thing, remember here, significance here is that to commemorate the Khijrali massacre that took place in 730 in Rajasthan. What was this? In 730 on 11th of September, over 363 Bishnoi villagers from Rajasthan led by Amrita Devi Bishnoi and her daughters sacrificed their lives in Khijrali while resisting the felling of sacred Khejri trees ordered by the Maharaja Abhay Singh representative. So to honor this day, this is observed. Then next is International Day for South-South Cooperation observed on 12th of September. This day is observed basically to promote collaboration among developing countries in the global south across economic, social, cultural, technical and political domain. Right? First time this was observed on 19th of December 2004. Right? And then in 2011, the date was changed from 19th of December to 12th of September. Correct? Take a note of this. Then one theme is also there here is, that is new opportunities and innovation through South-South and triangular cooperation. This is the theme here that you need to remember. Moving on, students, to state news.
IIT Madras and Guidance Tamil Nadu, they have launched Innovation Tamil Nadu platform. This is the first state level startup and innovation dashboard that has been launched here. What this will do is this will promote the innovation, entrepreneurship across Tamil Nadu, right? More and more youngsters will be able to come and start their businesses here, right? They will be provided support here with various venture capitals, with various funding, with various guiding and many more, right? So launch of Innovation TN Tamil Nadu platform has been launched by IIT Madras and guidance from the Tamil Nadu government, and this is the organization also that is providing help here, correct? And it is for the development and helping the ecosystem of startup to flourish in Tamil Nadu. Also, it is expected, or it is a data that states that Tamil Nadu hosts almost 19,000 startups, that is creating almost 2.2 lakh jobs, and it is attracting 1.2 lakh crore of investments. We are seeing 228 incubators here and 45 rising startup raising over 200 crore rupees each. So in simple term, in order to grow startup ecosystem in Tamil Nadu, this was launched. Next is NHSRCL, that is National High Speed Rail Corporation Limited, that is a wholly owned subsidiary of Indian Railways, has signed an agreement with L&T. The contract is worth 4,468 crore rupees and it is for Bhashar project, MHSR project. What is this? This is your Mumbai Ahmedabad High Speed Rail project that is valued at this particular amount. So direct question regarding this, right? And there will be 3 packages here of 508 km under this project. 12 stations will be developed, 2 depots will be developed, right? And what is the organization that is partnered here? That is NHRCL. They partnered with L&T for this Mumbai Ahmedabad High Speed Rail project, right students? So that's all for the day. Now it's time for revision part. Let's move to on. Next, identify करो correct statement regarding UDICE plus report जो कि FY25 अकेडमिक ईयर के द्वारा के लिए रिलीज की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही रहेंगे. नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इनके द्वारा अभी नारी रिपोर्ट रिलीज की गई, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेन सेफ्टी. पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लिस्टेड इन द टॉप 5 सेफेस्ट इंडियन सिटीज फॉर वीमेन इन 2025 एज पर द रिपोर्ट. तो यहाँ पे भुवनेश्वर इस लिस्ट में लिस्टेड नहीं है. अगर हम डाटा देखें तो कोहिमा टॉप पर आता है ऑफ नागालैंड, देन विशाखापट्टनम ऑफ आंध्र प्रदेश सेकंड पे, थर्ड पे भुवनेश्वर सिटी ऑफ उड़ीसा, देन ऐजवाल ऑफ मिजोरम फोर्थ पर, एंड गैंगटॉक एट 5th पोजीशन ऑफ सिक्किम. ठीक है, तो ये टॉप 5 सेफेस्ट सिटीज है इंडिया में. नेक्स्ट, किस कंट्री को इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट बाय सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स ड्यूरिंग द 23rd AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि अगस्त में हुई इन फुके, थाईलैंड. सो किस कंट्री को इलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड? यहाँ पर वो है हमारी कंट्री इंडिया. मार्क करेंगे, इंडिया करंटली होल्ड करता है द पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस, राइट? टेक अ नोट ऑफ दिस. यहाँ पे इसकी थीम भी याद रखेंगे. थीम रहेगी मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री विद विच इंडिया साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ब्लॉस्टर द टेक्निकल कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इंक्लूडिंग लाइफ स्टॉक. सो मेंशन द कंट्री विद विच इंडिया साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो है भूटान. नेक्स्ट, वेयर डिड मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये अभी इसका पार्टिसिपेशन हुआ जहां पे 700 से भी ज्यादा पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स एंड हेडक्वार्टर्ड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ. तो वो है इजिप्ट में, ये हमारा इवेंट हमें देखने को मिला था जहां पे 700 पर्सनल्स ने फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्स पार्टिसिपेट किया. नेक्स्ट, उस बैंक को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक MOU साइन किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ टू एनहेंस द क्रेडिट एक्सेस फॉर MSMEs, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एंड डिजिटल सॉल्यूशन. तो आइडेंटिफाई दैट बैंक, वो है इंडसइंड बैंक. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया गोल्डमैन सैक्स को ताकि ये जो अपने डाइवेस्टमेंट करेंगे वो कर सके इन द 4 पब्लिक सेक्टर बैंक, एंड ये सोल ट्रांजैक्शन एडवाइजर रहेंगे. किन बैंक में यहाँ पे डाई इन्वेस्टमेंट होगी? इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक. नेक्स्ट,
किस टाइप का लाइसेंस ग्रांट किया गया आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड को बाय आरबीआई? तो पेमेंट एग्रीगेटर का ये लाइसेंस रहेगा जिससे ये मर्चेंट को पेमेंट भेज सकते हैं और उनसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं विद इन इंडिया ओनली, क्रॉस बॉर्डर नहीं है ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया भारत पे के साथ अगस्त के महीने में टू लॉन्च इंडिया का पहला ईएमआई ड्रिवन क्रेडिट कार्ड को विच विल ऑपरेट ऑन द रूपे नेटवर्क। तो आइडेंटिफाई द बैंक वो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में इशू किया गया ऑफ ईवाई इकोनॉमी वॉच जो कि ईएनवाई के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई। ये बताता है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी बाय विच ईयर, 2038 तक। एंड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया की जो इकोनॉमी हो जीडीपी होगी 34.2 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी एंड हम सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन अवार्ड्स एज अनाउंस्ड इन अगस्त 2025। तो अगर ऑप्शन देखें यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, इन अगस्त हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो किनको अपॉइंट किया गया है एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? वो है अनीश दयाल। एंड ये किनको रिपोर्ट करेंगे? ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे टू एनएसए अजीत डोवाल जी। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में किनको अपॉइंट किया गया नया वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स? तो किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे? डॉक्टर राजीव रंजन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक आने वाले 5 साल के लिए। करेक्ट, मार्क करेंगे। मूविंग ऑन, फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स वॉज रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर उरिजीत पटेल इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट आईएमएफ बाय एसीसी? तो यहाँ पे इनको 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, किन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई अगस्त के महीने में जब रॉजर बिन्नी ये 70 साल के हो गए एंड यहाँ पे रूल है कि 70 साल के होते ही आप यहाँ पे रिटायरमेंट होती है, राइट? तो किन्होंने चार्ज संभाला एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? वो है राजीव शुक्ला। नेक्स्ट, इन अगस्त सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी ऑफ जापान इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू एक्वायर अप टू हाउ मच परसेंट पेड अप कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स इन येस बैंक लिमिटेड? तो 24.99% यहाँ पे स्टेक रहेगा, मार्क करके चलेंगे। एंड इनका ये अप्रूवल 1 साल तक वैलिड है। नेक्स्ट, वेयर डिड डीआरडीओ इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का? तो वो है उड़ीसा में। नेक्स्ट, इसरो इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, राइट? जहां पे पैराशूट को ड्रॉप किया जाएगा, उसकी यूजेबिलिटी, उसकी हार्डनेस, उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा एंड जब अगर जो सेफ लैंडिंग होगी, राइट, उसको प्रमोट करने के लिए क्रू की सेफ लैंडिंग के लिए ड्यूरिंग द गगनयान मिशन ये टेस्ट किया गया, राइट? तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट था, कहां पे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने अभी 2 आईएनएस कमीशन किए गए हैं इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एक है आईएनएस उदयगिरी एंड आईएनएस हिमगिरी। उदयगिरी की अगर हम बात करें, ये आपका सेकंड है ऑफ द प्रोजेक्ट 17A, राइट? प्रोजेक्ट 17A शिवालिक क्लास का ये फ्रिगेट है, राइट? एंड ये सेकंड आ जाता है, यहाँ पे हिमगिरी थर्ड आ जाता है। यहीं पे हिमगिरी को बनाया गया किसके द्वारा? जीआरएससी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। उदयगिरी को मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। मूविंग ऑन, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री दैट लॉन्च देयर एडवांस जुपिटर स्पेस कैमरा यूजिंग नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट इन अगस्त 2025। सो मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री जिन्होंने इसको लॉन्च किया, वो है इजराइल। नेक्स्ट, इन अगस्त वेयर डिड इंडिया इन्होंने होस्ट किया एशियन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी को फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि बिगेस्ट इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट इवेंट रहा। तो कहां पे इसको होस्ट किया गया? उत्तराखंड में इसको होस्ट किया गया। नेक्स्ट, वेटरन इंडियन क्रिकेटर चिश्तावर अरविंद पुजारा इन्होंने रिटायरमेंट ले ली सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। ये होल्ड करते हैं रिकॉर्ड फॉर द 525 बॉल्स, जो कि मोस्ट बॉल्स इन्होंने फेस की बाय एन इंडियन इन द टेस्ट क्रिकेट, राइट? इसी के अलावा इनको एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2013 में। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनॉग्रल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इन अगस्त 2025। सो पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यह है ऑफिशियल मैस्कॉट यहाँ पे स्नो लेपर्ड नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या है? हिमालयन किंगफिशर। आई रिपीट, ये है हिमालयन किंगफिशर, हिमालयन किंगफिशर, राइट? टेक अ नोट ऑफ दिस।
और यहाँ पे लोगो क्या रहेगा, ये तो है मैस्कॉट, लोगो क्या रहेगा, एक शिकारा एक हाउस बोट हो जाती है ऑन डल लेक। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया किस स्टेट को एज द होस्ट सिटी फॉर फाइड वर्ल्ड कप 2025 शेड्यूल्ड इन नवंबर 2025। तो किसको डिक्लेयर किया गया विच स्टेट एज द होस्ट सिटी, गोवा यहां पर होस्ट सिटी रहेगी। नेक्स्ट, जूलियन वेबर, इन्होंने अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी डायमंड लीग में, जो कि जेवलिन थ्रो का इवेंट होता है। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में ये इवेंट हुआ था। इंडिया के नीरज चोपड़ा, इनकी सेकंड पोजीशन रही यहां पर इस इवेंट में। जूलियन वेबर जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा का जो थ्रो था वो था 85.01 मीटर का, वेरेस जूलियन वेबर जो कि जर्मनी से है, इनका थ्रो था 91.57 मीटर का। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस डे, ये ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 23 अगस्त टू ऑनर द हिस्टोरिक सक्सेस ऑफ इसरो के कौन से मिशन का, चंद्रयान 3 मिशन का, एंड सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रज्ञान रोवर। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे, इसी को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से जानते हैं। इसको ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस इंडिया ऑन 29 अगस्त टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम, ध्यानचंद जी। राइट, काफी फेमस व्यक्ति रह चुके हैं, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। हॉकी से ये रिलेटेड थे, विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से इनको जाना जाता था। एंड इस बार हमने 14th एडिशन ऑब्जर्व किया है नेशनल स्पोर्ट्स डे का। नेक्स्ट, और कब, 29 अगस्त को। नेक्स्ट, इंडिया ने ऑब्जर्व किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे 30 अगस्त को टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमईज की इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। पूछा जा रहा है इन विच ईयर डिड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने अनाउंस किया कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो सन 2000 में ये आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। राइट, मार्क करके चलेंगे इसको। एंड पहली बार जो इस डे को ऑब्जर्व किया गया था 30 अगस्त 2001 में ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, कौन है चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एल्डेवीज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एज ऑफ अगस्त 2025? तो वो है राजेश शाह। नेक्स्ट, इन अगस्त विच टू स्टेट गवर्नमेंट्स अग्रीड टू कैरी आउट ऑल फ्यूचर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्लांटेशन ज्वाइंटली इन द डिस्प्यूटेड एरिया बेल्ट अलॉन्ग देयर इंटरस्टेट बॉर्डर? तो कौन सी दो स्टेट गवर्नमेंट्स ने एग्री किया टू कैरी आउट ऑल फ्यूचर एक्टिविटीज? वो है नागालैंड एंड असम के द्वारा। Next, as per the Ministry of Commerce and Industry, what was the value of India's seafood export in FY25? तो इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या थी? $7.45 बिलियन। नेक्स्ट, नेम द क्रिकेट म्यूजियम जिसको इनॉग्रेट किया गया मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा अगस्त के महीने में एट वानखाड़े स्टेडियम इन मुंबई। तो स्टेडियम का नाम क्या है? शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो प्लेटफॉर्म को जिसने पार्टनर किया कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगस्त के महीने में टू लॉन्च EZ पेंशन प्लान। तो policybazaar.com ये वो प्लेटफॉर्म है जिन्होंने कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ यहां पे पार्टनर किया। नेक्स्ट, किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया बाल मित्रा कैंपेन को टू रिकनेक्ट द स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन विद फॉर्मल एजुकेशन? 16 से 14 साल के जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे थे उनको वापस स्कूल में ले जाने के लिए लॉन्च किया गया। एंड कहां पे ये लॉन्च किया गया? दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने रिकॉर्ड किया ओवर $100 बिलियन ट्रेड विद इंडिया इन FY25 विद इंडियाज कम्युमुलेटिव इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग $75 बिलियन बिटवीन 1996 टू 2024। वो है अफ्रीका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन ऑफ स्पिनर जिन्होंने अनाउंस कर दी रिटायरमेंट फ्रॉम IPL। वो है रविचंद्रन अश्विन, काफी फेमस स्पिनर हैं ये। नेक्स्ट, इन विच सिटी केम्गोवडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड? तो ये बेंगलोर में लोकेटेड है, बेंगलुरु में। Next, students, is our homework section, and the homework questions that I'm giving you, students, we have revised these questions right in the middle of the videos in the past few weeks. Right, so tell me which country recently joined the IBCA, International Big Cat Alliance, and the total number of countries now. Second question, no helmet, no fuel. This was initiative launched by which state? Third question, which became the first state to implement Supreme Court order on stray dogs? Name that state. Fourth question, tell me recently, if I ask you, India is planning along with United Nations World Food Program to supply how much amount of what cereal so that for the global humanitarian aid basically.
Fifth question, tell me recently which organization has launched a affordable housing finance under Anugraha brand. Anugraha brand. This is the name of the brand under which affordable housing financing has been launched. So name that organization or name that insurance company. I have give you the option very close here, right? Then apart from this, tell me for Tata Digital. This is your sixth question. For Tata Digital, who has been appointed as the new Chief Executive Officer and Managing Director. So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में 13, 14 एंड 15 सितंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेशन पसंद आया तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमित शाह जी के द्वारा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन फैसिलिटी को लॉन्च किया गया 5 नए एयरपोर्ट्स पे, अब टोटल 13 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। देन हम बात करेंगे समुद्र प्रदक्षिणा की। ये पहला ट्राई सर्विस ऑल वीमेन सर्कम नेविगेशन ये एक मिशन लॉन्च किया गया मुंबई महाराष्ट्र से, उसको डिस्कस करेंगे। देन अभी एक एमओयू साइन किया गया है आईआईटी दिल्ली के साथ ताकि स्पोर्ट्स साइंस को प्रमोट किया जा सके। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। पहले ये 8 एयरपोर्ट्स पे लॉन्च किया गया था, अब इसमें 5 नए एयरपोर्ट्स ऐड कर दिए हैं, तो टोटल नंबर हो गया 13 इन एयरपोर्ट्स का। ये बेसिकली फैसिलिटी सबसे पहले लॉन्च की गई थी जुलाई 2024 में। कहाँ पर? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इससे होता क्या है, विद इन 30 सेकेंड आपकी इमिग्रेशन हो जाती है, करेक्ट। इससे आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, राइट, एंड इस बायोमेट्रिक के थ्रू आपका पूरा डाटा फीड किया जाएगा, आपको एज अ अप्रूव्ड सिटीजन यहाँ पे लगाया जाएगा। अगर आप इस पर रजिस्टर करते हैं ये तभी होगा, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका जो चेक इन प्रोसेस है, जो इमिग्रेशन प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होता हुआ देखेगा एंड विद इन 30 सेकेंड्स यहाँ पर आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। ये आप वो 13 एयरपोर्ट देख सकते हैं जहाँ पे अब ये फास्ट ट्रैक फैसिलिटी जो कि है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन फैसिलिटी लॉन्च की गई है। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे टीटीपी भी है, ये क्या है? ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। मतलब जो ट्रैवलर्स यहाँ पर इस पर रजिस्टर करते हैं उनका प्रॉपर बायोमेट्रिक हो जाएगा एंड अपने बोर्डिंग पास को जाके जस्ट उन्हें स्कैन करना है एंड विद इन 30 सेकेंड्स उनको यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस उनका कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो रजिस्ट्रेशन वेबसाइट है जहाँ पर इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसका आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में 24 जुलाई को यहाँ पे पहली बार लॉन्च किया गया था। आप ये 5 नए एयरपोर्ट देख सकते हैं, लखनऊ में, त्रिवेंद्रम में, कोझिकोडे में, त्रिचुपल्ली में एंड अमृतसर में, जहाँ पे इनको ऐड किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? यह है राजनाथ सिंह जी। इनके द्वारा फ्लैग ऑफ की गई समुद्र प्रदक्षिणा, आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं। ये पहली ट्राई सर्विस ऑल वीमेन सर्कम नेविगेशन है फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। ये बेसिकली है क्या? ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, राइट। यहाँ पे एंड ऑल वीमेन की ये टीम रहेगी, 10 वीमेन की ये टीम रहेगी, जहाँ पे अगर हम देखें 5 हैं इंडियन आर्मी से, 4 हैं इंडियन एयरफोर्स से एंड 1 है इंडियन नेवी से, राइट। एंड इनका ये यहाँ पे पार्टनरशिप रहेगी एंड यहाँ पे साथ मिलकर एक सेलिंग वेसल है जिसका नाम है IASV, जो कि है इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल, जिसका नाम है त्रिवेणी। इसमें ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है त्रिवेणी, राइट। ये 50 फुट की एक क्लास ए याच है जो कि पुडुचेरी में इंडिजीनियसली बिल्ड की गई है। ये 3 ग्रेट केप्स को क्रॉस करेंगी। 3 ग्रेट केप्स कौन सी आ जाती हैं? जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, राइट। सॉरी, जो 3 केप्स है वो आपकी कहाँ पर आ जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका में। देन ये 4 पोर्ट्स पे जाएंगे यहाँ पर, राइट। 10 मेंबर का टीम रहेगी, 10 वीमेंस की ये टीम रहेगी। 21,600 नॉटिकल माइल्स यहाँ पे कवर किया जाएगा एंड गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र से इसको लॉन्च किया गया इस मिशन को। इंपॉर्टेंट क्या है? पहली वर्ल्ड की पहली ट्राई सर्विस सेलिंग एक्सपीडिशन है। ट्राई सर्विस मतलब तीनों सर्विस, तीनों फोर्सेज हैं इंडिया की। देन
तीनों फोर्सेस में से जो यहाँ पे क्रू मेंबर्स है वो सारी वीमेन है, ऑल वीमेन है। एंड एक्सपीडिशन लीडर कौन रहेंगे? लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर। और एक्सपीडिशन डेप्टी लीडर कौन रहेंगे? स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी राजू। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, फिर NCSSR, इन्होंने एक अभी MOU साइन किया है। ये NCSSR क्या है? नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च, राइट। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इन्होंने भी एक MOU साइन किया है IIT दिल्ली के साथ, ताकि स्पोर्ट्स साइंस को प्रमोट किया जा सके एंड इंडिजीनियस इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके इंडिया में। ये सब किया जाएगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव घर से स्वदेशी कैंपेन। ये बेसिकली एम क्या है यहाँ पर, क्यों किया जा रहा है ये? ताकि जो स्पोर्ट्स में है ना, हम यहाँ पे साइंस को ला सकें, हम नई टेक्नोलॉजीज बना सकें, नए मेथड्स बना सकें, जिससे एथलीट्स की परफॉर्मेंस बेटर हो सके, एथलीट्स की परफॉर्मेंस में एनहेंसमेंट आ सके, राइट। साइंटिफिक मेथड से हम यहाँ पे पता लगा सके कि कैसे हम जो एथलीट्स हैं उनकी वेलबींग, उनकी रिकवरी, उनकी परफॉर्मेंस और बेटर कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे IIT दिल्ली एंड NCSSR के द्वारा ये MOU साइन होता हुआ हमें देखा। मार्क करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे याद रखेंगे IIT दिल्ली के कैंपस में ही एक बायोमैकेनिक्स लेबोरेटरी भी सेटअप की गई है, ताकि रिसर्च में कोई कमी ना आ सके। अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, राइट, तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के? हरि रंजन राव। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। एंड इसको 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था, राइट स्टूडेंट्स। सो मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन्होंने कभी MOU साइन किया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ, ताकि इंडिया का सॉवरेन क्लाउड डेवलपमेंट किया जा सके। देखो, क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, फिर क्लाउड क्या होता है? आप कोई कंपनी है, वो या तो वो अपने सर्वर्स रख ले, उस पर सर्वर इंटरनेट को रन करे, अपनी वेबसाइट्स वगैरह, अपने बिजनेस को रन करे, वहीं पे डाटा स्टोर करे, या फिर वो क्लाउड के थ्रू सर्विस ले लेते हैं, जैसे AWS हो गया, GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, एज्योर हो गया, राइट। इनसे क्या होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज ये सर्विस प्रोवाइड कराती हैं कि हम आपका डाटा स्टोर रखेंगे, हम आपका सर्वर प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको ऑडियंस प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपका जो मेंटेनेंस का काम है, जो हार्डवेयर का काम है, स्टोरेज का काम है, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा, राइट। तो ऑन डिमांड सर्विसेज रहती हैं यहाँ पर, राइट। एंड यहीं पे अब क्या हो गया है, AI आ गया है। AI जब पिक्चर में आ जाता है तो AI ये सर्विसेज ज़्यादा यूज़ करेगा आने वाले टाइम में। इवन इसलिए आपने देखा होगा ओरेकल, अभी उनका 40% वैल्यूएशन में जंप हमें देखने को मिला। लैरी एल्सन ये कुछ टाइम के लिए वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन गए हैं अभी रिसेंटली, राइट, क्योंकि इनकी ये जो ओनर है इस कंपनी के, एंड AI के साथ साथ क्लाउड का भी हमें काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिल रहा है। इनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर भी मिला है अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट से, जिससे इनकी ये वैल्यूएशन बढ़ती हुई देखी है, राइट। तो सिमिलरली इंडिया में हम अपना क्लाउड सर्विस बना सके, इंडिया की ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जो कि अभी ऐसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे TCS ने ये MOU साइन किया CDAC के साथ, ताकि ये सॉवरेन क्लाउड डेवलपमेंट कर सके इंडिया का। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल अफेयर्स पर। अभी यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के, ये UAE की विजिट पे थे, राइट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 10 से 11 सितंबर तक। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनसे रिलेटेड याद रखेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे कि एक IIT दिल्ली कैंपस है अबू धाबी में, राइट। यहाँ पर इन्होंने अटल टिंकरिंग लैब का इनॉग्रेशन करा, फर्स्ट एवर अटल टिंकरिंग लैब, राइट। फिर इसी के अलावा 12 अटल टिंकरिंग लैब्स CBSE एफिलेटेड स्कूल्स में, जो कि अबू धाबी में वहाँ पे लॉन्च की गई, राइट, एज अ पार्ट ऑफ टीचर डे सेलिब्रेशन। फिर इसी के अलावा IIM अहमदाबाद का कैंपस, जो कि दुबई में है, अभी उसको इनॉग्रेट किया गया। तो IIT दिल्ली का कैंपस कहाँ पर था? अबू धाबी में। एंड अब नया IIM अहमदाबाद का कैंपस कहाँ पर आ गया है? दुबई में, राइट। ये मार्क करेंगे। फिर इसी के अलावा इन्होंने एक प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया इंडियन कंसल्टेट में, जो कि दुबई में है। एंड ये किस कैंपेन के अंडर था? एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव के अंडर, जहाँ पर उनके द्वारा घाफ ट्रीज को, प्लांटेड घाफ ट्रीज को यहाँ पे लगाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस पे TCIL क्या है? टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, ताकि जो IT सॉल्यूशन सर्विसेज है ना, उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। देखो, बैंक की सर्विसेज में ना कभी कमी नहीं आनी चाहिए, कभी वो रुकनी नहीं चाहिए, राइट, या फिर उन पर कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेमेंट करी एंड उस बैंक के थ्रू आपका वो बीच में पेमेंट अटक गई क्योंकि कोई वो आ गया, या किसी ने ईजिली बैंक को हैक कर लिया, तो सेफ्टी एक बड़ा इशू आ जाता है, राइट। रेगुलरिटी, कॉन्टिन्यूअस सर्विसेज प्रोवाइड कराना, वो दूसरा एक इशू आ जाता है। तो IT सर्विसेज को बेटर करने के लिए, बेटर डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए कस्टमर्स को PNB बैंक के द्वारा ये MOU यहाँ पे साइन किया गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $126 मिलियन का अग्रीमेंट साइन किया गया टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म इन उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड में एक तो बड़ा रीजन आज के टाइम पे क्या है, सेफ्टी। बारिश में सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है वहाँ पे, इवन ट्रैवलर्स को भी काफ़ी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। एंड दूसरा, इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में पब्लिक वहाँ पे टूरिस्ट के तौर पे जाती है, जिससे कूड़ा भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो कूड़े को वो जो कि हो गया वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि जो रूरल डेवलपमेंट है उत्तराखंड का वो किया जा रहा है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नई सर्विसेज आप देखेंगे, क्लीनलीनेस ड्राइव देखेंगे, वो सारी यहाँ पे हमें आती हुई दिखेंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $126.4 मिलियन का अग्रीमेंट साइन किया ताकि रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके उत्तराखंड में एट टेहरी लेक एरिया प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आईएफसी। ये वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राइट, द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इन्होंने प्लेज किया $137 मिलियन, जो कि है ऑलमोस्ट 1210 करोड़ रुपए, एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट टू जेबीएम इकोलाइफ। देखो एक होती है जय भारत ऑटो, जेबीएम, राइट। ये वो कंपनी है जो आपने देखा होगा इंडिया में बसेस को बनाती है, बसेस के पीछे जेबीएम आप देखेंगे लिखा होगा। तो जेबीएम एंड ग्रीन सेल, इन दोनों को यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की गई है। जेबीएम की अगर हम बात करें तो इनको $100 मिलियन की फंडिंग मिली है। ग्रीन सेल को बात करें तो $37 मिलियन की फंडिंग मिली है। क्यों मिली है? ताकि इलेक्ट्रिक बसेस को इंडिया में बनाया जा सके, प्रमोट किया जा सके। 4000 बसेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस आने की बात की जा रही है, राइट, जिससे काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, पॉल्यूशन कम होता हुआ हमारा दिखेगा। एंड 39 म्यूनिसिपैलिटीज में इनको लॉन्च किया जाएगा, ऑलमोस्ट 8 इंडियन स्टेट्स में। वो 8 इंडियन स्टेट्स कौन सी हैं? जैसे महाराष्ट्र, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी एंड दिल्ली, जहां पे इनको लॉन्च किया जाएगा। अगर इंडिया की बात करें एज ऑफ नाउ, हम 20 लाख के करीब यहाँ पे इंडिया में बसेस हैं, जिसमें से हम देखेंगे धीरे धीरे अब जो ट्रांजिशन होगा, जो नई बसेस आएंगी वो इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इकोनॉमी एंड बिजनेस पर आते हैं स्टूडेंट्स। आईसीआरए, इंडियाज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी फॉरकास्ट है 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया उसको। पहले ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 6% से ग्रो करेगा FY26 में, जो कि बढ़कर अब 6.5% हो गया फॉर FY26। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, भारत फॉर्ज एंड यूके विंड रेसर्स, इनके द्वारा एक पैक्ट साइन किया गया ताकि इंडिया में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को लाया जा सके, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे फॉर अ कोलैबोरेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अल्ट्रा के नाम से इनको यहाँ पे लाया जाएगा। ये साइन किया गया डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल के अंदर, जो कि एक ग्लोबल डिफेंस एग्जीबिशन है जो कि लंदन यूके में हुआ। देखो एक और चीज, भारत फॉर्ज, ये क्या है? फॉर्जिंग एंड एडवांसिंग इंजीनियरिंग कंपनी, एंड यूके विंड, राइट, इनके साथ यूके विंड रेसर्स जो कि एक एडवांस कार्गो ड्रोन मैन्युफैक्चर कंपनी, इनके साथ यहाँ पे पार्टनर किया गया ताकि इंडिया में ये ड्रोन्स को लाया जा सके। अगर आपको याद हो तो इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है विद अ विजन ऑफ 2035 इन पिक्चर। तो इवन यहाँ पे क्या होगा, ये जो ड्रोन्स आएंगे ये अल्ट्रा ड्रोन्स है, जो कि यूएवी अल्ट्रा ड्रोन्स, इससे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, इनको काफी बेनिफिट मिलेगा लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में, राइट। इवन अगर ड्रोन है तो हम इसको एज अ सर्वेलेंस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। सीपी राधाकृष्णन जी ये 15वें वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडिया के। इन्होंने सक्सीड किनको किया? जगदीप धनखड़ जी को। और इसी के अलावा स्टूडेंट्स याद रखेंगे, इससे पहले ये कौन थे? ये थे गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, राइट। एंड फिर अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, ये कुछ आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, जो आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 63 में, राइट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में। देन जो वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द प्रेसिडेंट्स फंक्शन ड्यूरिंग द वैकेंसी और टेम्परेरी एब्सेंस, ये आर्टिकल 65 में, ठीक। फिर इसी के अलावा अगर पूछा जाए कितने साल की एज लिमिट होती है या फिर कितने साल तक का टर्म रहता है, तो 67 आर्टिकल में ये लिखा गया है 5 साल का टर्म होता है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। एंड ओथ को कौन एडमिनिस्टर करती है? वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को कौन एडमिनिस्टर करते हैं? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू मैम। एंड ये 69 आर्टिकल में लिखा गया है, राइट। तो ये आर्टिकल्स मार्क करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओथ एडमिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा, आर्टिकल 69 में। ये किनको सक्सीड करेंगे? जगदीप धनखड़ जी को सक्सीड करेंगे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था हेल्थ रीजंस के लेकर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट गुजरात गवर्नर आचार्य देवव्रत। अभी हमने देखा कि सीपी राधाकृष्णन जो कि गवर्नर थे महाराष्ट्र के, अब वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, तो इनकी पोजीशन जो थी वो वैकेंट हो गई गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की। तो किनको एडिशनल चार्ज दिया गया? गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी को यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, राइट स्टूडेंट्स, मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं FSIB, फाइनेंशियल
सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, इन्होंने रिकमेंड किया रवि रंजन को फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये किनको सक्सीड करेंगे? विनय एम टॉन्से को ये यहाँ पे सक्सीड करेंगे। अगर एसबीआई की बोर्ड की बात करें तो 1 चेयरमैन है एंड 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वहाँ पे। नेक्स्ट साइंस एंड टेक की बात करें तो इंडिया का टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एंड स्पेन का इंद्रा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर अभी हमें पार्टनरशिप देखने को मिली, राइट। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एंड जो कि इंडिया की लीडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, वहीं पे स्पेन की इंद्रा जो कि ग्लोबल एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है स्पेन की। इन दोनों के द्वारा मिलकर 3 डायमेंशनल एएसआर क्या है? एयर सर्वेलेंस सिस्टम्स या फिर एयर सर्वेलेंस रडार को यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय द नेम लेंजा। एंड इंडियन नेवी को ये कमीशन किया गया है एंड आईएनएस माइसोर इंडियन नेवल शिप है, जहां पर ये आप रडार देख सकते हैं 3 डायमेंशनल एयर सर्वेलेंस रडार, जिसको डिलीवर यहाँ पे किया गया है। एंड इससे आप देखेंगे जो थ्रेट्स हैं, जैसे ड्रोन्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, राइट, इनसे यहाँ पर डिटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इंडिया को। एंड इसकी जो रेंज आ जाती है वो है 256 नॉटिकल माइल्स की। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट पर आते हैं। फिर नई गीको की स्पीशीज यहाँ पे डिस्कवर की गई है, वो है क्रिप्टोडेक्लेस वना रक्षका, राइट। आई रिपीट, क्राइटोडेक्लेस वना रक्षका वन होता है आपका फॉरेस्ट, रक्षका होता है जो उनका कीपर होता है, वन को सेफ रखते हैं, राइट। तो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑनर करने के लिए ये नई गैको की स्पीशीज डिस्कवर की गई, राइट, तो मार्क करेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं 2 नई एस्प्रेगलस स्पीशीज डिस्कवर की गई वेस्टर्न घाट में, आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, ये है एस्प्रेगलस, ये ब्लैक फंगस इसको बोला जाता है। 2 नई स्पीशीज यहाँ पे डिस्कवर की गई हैं, ये वो 2 स्पीशीज का नाम है। कहाँ डिस्कवर की गई है? वेस्टर्न घाट्स में। मूविंग ऑन टू इंपॉर्टेंट डे स्टूडेंट्स, नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे 11 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी फॉरेस्ट, ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 11 सितंबर को। ये डे 2013 में डिक्लेयर किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है जो कि 1730 में जो खिजराली मैसेकेयर हुआ था राजस्थान में, उसको ऑनर करने के लिए। ये मैसेकेयर क्या था कि ऑलमोस्ट 363 बिश्नोई विलेजर्स ने राजस्थान में, जो कि लेड किया गया अमृता देवी बिश्नोई जी के द्वारा एंड हर डॉटर्स के द्वारा, उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन खिजराली। वो क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि महाराजा अभय सिंह के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया था कि खेजरी ट्रीज को यहाँ पे काटना है, एंड उनका ये सेक्रेड ट्रीज मानते थे बिश्नोई कम्युनिटी, एंड इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। एंड इसी को ऑनर करने के लिए एंड इसी को ध्यान में रखने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड फिर खिजराली मैसेकेयर से इंस्पायर होकर चिपको मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी 1973 में चमोली उत्तराखंड में, जो कि एक वीमेन लेड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन। 12 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो साउथ साउथ कॉपरेशन है अमंग इकोनॉमीज, सोशल, कल्चर, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल डोमेन्स, वो साउथ साउथ एरियाज में यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। पहले ये 2011 तक अगर हम बात करें, 2011 तक ये याद रखेंगे, पहली चीज की 2003 में इसको डिक्लेयर किया गया था, राइट। फर्स्ट ऑब्जर्वेंस इसका था 19 दिसंबर 2004 में, फिर 2011 में इसका 19 दिसंबर से चेंज करके इसको क्या कर दिया गया? 12 सितंबर। फिर यहीं पे थीम भी याद रखेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन थ्रू साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कॉपरेशन, ये यहाँ पे थीम रहेगी। स्टेट न्यूज पे आते हैं स्टूडेंट्स। फिर आईआईटी मद्रास एंड गाइडेंस तमिलनाडु के द्वारा इनोवेशन तमिलनाडु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जहां पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट दिया जाएगा, स्टार्टअप्स को हेल्प किया जाएगा कि वो ग्रो कर सकें। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, उनको लिंक्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, इंक्यूबेटर से, इन्वेस्टर से कनेक्ट किया जाएगा, राइट। एंड अगर उनको कोई स्किल्स की जरूरत है, राइट, उनको कोई मेंटरशिप की जरूरत है, तो वो सारी भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी अगस्त में 2025 में, जो बताती है कि 19,000 से भी ज्यादा यहाँ पे स्टार्टअप हमें तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, जो कि 2.2 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। 228 इंक्यूबेटर्स हैं एंड 45 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने 200 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट को यहाँ पे रेज किया है। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर NHSRCL, जो कि है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक सब्सिडरी है इंडियन रेलवेज की। इनके द्वारा अभी LNT के साथ पार्टनर किया गया फॉर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए, राइट। 4468 करोड़ रुपीज का ये प्रोजेक्ट रहेगा, जहां पर हम देखेंगे 157 किलोमीटर का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा एंड 12 स्टेशन बनेंगे, 2 डिपोज हमें यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। इससे क्या है, कनेक्टिविटी और बेटर होती हुई हमें दिखेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी, एंड देन हम होमवर्क सेक्शन पे चलेंगे।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। कहां पर? ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड अमित शाह के द्वारा कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? निजामाबाद, तेलंगाना में, राइट। एंड यहाँ पे एम है कि हम कैसे टर्मरिक के एक्सपोर्ट को $1 बिलियन तक ले जा सकें 2030 तक। टर्मरिक होता है हल्दी। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने डेडिकेट किया एक हेजिंग डेस्क पुणे में अंडर स्मार्ट प्रोजेक्ट, जो इंश्योर करेगा फेयर मार्केट प्राइसेस मिले, आपकी जो फार्मर्स की इनकम है वो इंक्रीज होती हुई दिखे, राइट, महाराष्ट्र में। तो ये इनिशियली जो डेस्क था ये किन क्रॉप्स पे फोकस करेगा, जो ये स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंडर रिलीज की गई हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स अंडर फोकस में रहेंगी वो है कॉटन, टर्मरिक एंड मीस। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली 6 साल के तेजबीर सिंह, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया बाय बिकमिंग द यंगेस्ट टू क्लाइंब माउंट एल्ब्रस। ये हाईएस्ट पीक है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली किस कंपनी ने या फिर विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी आफ्टर कमिशनिंग 1011.5 मेगावाट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स इन खावड़ा, गुजरात, राइट। तो विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट्स, तो वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट, इन जून कहां पर वेयर डिड द केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने लॉन्च किया राजभवन अन्नधन स्कीम को, राइट, राजभवन अन्नधन स्कीम को। तो कहां पे लॉन्च किया इनके द्वारा गोवा में इसको लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे एक चेक दिया गया 1,20,000 रुपए का, हैंडेड ओवर टू द गोवा स्ट्रीट प्रोविडेंस ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे फाइनेंशियल एड ऑफ 25,000 रुपीज ईच प्रोवाइड किया गया था टू अप्रॉक्सीमेटली 40 पेशेंट्स ड्यूरिंग द इवेंट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया क्रूज 2025 का डायलॉग हमें देखने को मिला, राइट, इनॉग्रेटेड बाय सरबंदना सोनोवाल। तो वो है चेन्नई में हमें ये देखने को मिला, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, उस नई सुपर एप्लीकेशन का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा लॉन्च की गई ऑन 1 जुलाई, जो रिप्लेस करेगी स्वारेल एप्लीकेशन को टू प्रोवाइड द कंसोलिडेटेड रेलवे सर्विसेज। वो है रेल 1, राइट। ये नई सुपर एप्लीकेशन है जो कि 40th फाउंडेशन डे ऑफ CRIS के दौरान लॉन्च की गई थी। CRIS क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी है, वेरियस कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजी लक्ष्मी स्कीम को, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा एट डिजिटली एम्पावरिंग द अर्बन पुअर वीमेन एंड प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा, राइट, ये डिजी लक्ष्मी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। एंड एक इनिशिएटिव और है जो कि है 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योरशिप, और 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योर, इसके अंडर यहाँ पे लाया जाएगा कि एक घर में एक एंटरप्रेन्योर तो होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नया नाम बताओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसको ऑफिशियली रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रिसेंटली। तो क्या नाम रखा गया इसका? ये है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सावित्रीबाई फुले जो कि एक विजनरी थी, 19th सेंचुरी की एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थी, उनके नाम के बिहाफ पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया लोकोमोटिव एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी, जो एनहांस करेगा रीजनल कनेक्टिविटी इन द अफ्रीकन नेशंस एंड रेलवे रीडेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर तुमाकुरू रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका में है, फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रेलवे से मिला। तो उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया ये लोकोमोटिव एक्सपोर्ट्स ऑर्डर का फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी। तो वो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हेल्ड देयर फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जून के महीने में, दैट इज एम्ड एट फॉस्टरिंग साइंटिफिक क्यूरोसिटी एंड बूस्टिंग द एस्ट्रो टूरिज्म इन द रीजन। तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट, इन जुलाई वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट equine disease compartment officially organized by the World Organization for Animal Health established। तो कहाँ पे इंडिया का पहला equine disease free compartment को officially recognize किया गया था? तो ये रहेगा मेरठ, यूपी में। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आ जाते हैं, विच इंडियन मिनिस्ट्री इन्होंने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर, गेनिंग वोटिंग राइट्स अलोंगसाइड यूएसए। तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा यहाँ पे यूनिकोड कंसोर्टियम को वापस से ज्वाइन किया गया है। यहीं पे याद रखेंगे यूनेस्को ने एग्जिट कर दिया है यूएसए ने एग्जिट कर दिया है यूनेस्को से, एज वेल एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन्होंने जनवरी में एग्जिट ले लिया था। नेक्स्ट, नेम द हाई कैपेसिटी स्विच कम राउटर विद 25.6 टेराबिट
पर सेकेंड थ्रूपुट, जिसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट के डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर के द्वारा एट द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स कैंपस इन दिल्ली। इसका नाम रहेगा सक्षम 3000। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। एंड इसको डेवलप किया गया है CDOT के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और ये जो सक्षम है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो मॉडर्न डाटा सेंटर्स हैं उनको ये सपोर्ट कर सके। लार्ज स्केल कंप्यूटिंग क्लस्टर्स जहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 5G जनरेशन, 6G जनरेशन नेटवर्क्स हो, उनको यूज़ कर सके एंड AI के वर्कलोड्स को ये संभाल सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर दैट सिक्योर्ड इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 300 करोड़ रुपीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी इन जुलाई, ताकि बुलेट प्रूफ जैकेट्स यहाँ पे एंड एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स यहाँ पे सप्लाई किए जा सके। तो आइडेंटिफाई दैट इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर वो है SMPP लिमिटेड एंड 300 करोड़ रुपए के ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे जहाँ पे 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड 11,700 एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स डिलीवर किए जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने अप्रूव किया इंप्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ताकि स्टेट लेवल विलेजेस को यहाँ पे उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। राइट, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, इनके चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी के द्वारा लॉन्च की गई। यहाँ पे एक विलेज को सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट एंड उनको मिनिमम पॉपुलेशन 2000 होनी चाहिए वहाँ पे एंड 500 कैटल्स होनी चाहिए एंड इन सेलेक्टेड विलेजेस को वृंदावन ग्राम्स बोला जाएगा, जहाँ पर उनको सेल्फ सफिशिएंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाएगा। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसको लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान जी के राजस्थान में। कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। इनका एम रहेगा कि एलिमिनेट कर सके हम क्या, रूरल पॉवर्टी को इन राजस्थान। राइट, रूरल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए राजस्थान में ये स्कीम लॉन्च की गई है जो कि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड्स, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया DPIIT के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन A और C सही है, B गलत है। B कह रहा है महाराष्ट्र इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर विनिंग 10 अवार्ड्स इंक्लूडिंग 7 डिस्ट्रिक्ट लेवल रिकॉग्निशन। तो नहीं, आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे इमर्ज करके आई एज द टॉप परफॉर्मर। अब ऑप्शन आपके सही हैं तीनों। फिर आ जाते हैं फोर्ब्स, जो कि एक अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी, इन्होंने रिलीज की लेटेस्ट एडिशन ऑफ द फोर्ब्स 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन ऑन अर्थ की लिस्ट। पूछा जा रहा है इनमें से टॉप 5 की लिस्ट में कौन नहीं है, तो किरण मजूमदार टॉप 5 की लिस्ट में नहीं आती। नेक्स्ट, एज ऑफ जुलाई 2025 जो कि अनाउंसमेंट थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विनर ऑफ द संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स अंडर द 11th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे गीतांजलि मेहर इसमें नहीं है। टेक अ नोट ऑफ दिस, 11th नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स के दौरान बाकी सबको यहाँ पे ऑनर किया गया। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया R दोराईस्वामी को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन जुलाई। तो वो है LIC एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? सतपाल बन्नो को ये सक्सीड करेंगे। सतपाल बन्नो को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स संजय कौल इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का इन गांधीनगर गुजरात। तो कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये किनको सक्सीड करेंगे, ये आपका होमवर्क है, मुझे नीचे बताओ। फिर आ जाते हैं, मेंशन द बैंक जिन्होंने अपॉइंट किया रघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक, ये सक्सीड करेंगे श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा को। तो उस बैंक का नाम बताओ यहाँ पर, ये है कर्नाटका बैंक। फिर आ जाते हैं, इन जुलाई किनको अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन फॉलोइंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेनिस सिम्बल्स रेजिग्नेशन। तो किनको अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर, वो है यूलिया एनाटोलोविना। राइट, ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी है एंड ये 2nd वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है यूक्रेन की। नेक्स्ट, इन जुलाई ACC ने अपॉइंट किया नितिन गुप्ता को एज द न्यू चेयरपर्सन किस ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल के लिए, एंड ये सक्सीड करेंगे रवनीत कौर को। तो ये बनाए गए हैं नए चेयरपर्सन कहाँ के? NFR नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के, NFRA के। फिर आ जाते हैं, किस आर्टिकल के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी इन्होंने रेजिग्नेशन अपना सबमिट किया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो ये आर्टिकल 67A के अंडर इन्होंने रेजिग्नेशन किया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किनको देते हैं? तो वो प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट, अभी RBI ने अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ द करंट सी इन्वेस्टमेंट्स BV टू एक्वायर कितना % स्टेक इन IDFC फर्स्ट बैंक 7,500 करोड़ की लागत से। तो 9.99% स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया जाएगा इनके द्वारा।
फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप की गई थी इन पार्टनरशिप विद इजरायली स्पेस एजेंसी जो कि लॉन्च की गई इनटू स्पेस फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। तो मेंशन द नेम ऑफ दैट जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्या नाम रहेगा उस सैटेलाइट का, वो है ड्रॉर 1। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था जो कि स्पेसएक्स का रॉकेट है। फिर आ जाते हैं डीआरडीओ, इन्होंने 6 इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स को हैंडओवर किया टू द इंडियन नेवी इन जोधपुर राजस्थान। इसमें से 6 प्रोडक्ट्स में से ये कौन सा यहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं है, तो एग्जीक्यूशन सर्वाइवल वेसल, ये वो प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ 3 मिसाइल जो कि कंडक्ट की गई बाय इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडियन नेवल शिप अजय को, जो कि फाइनल है ऑफ द 8th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी टू स्ट्रेंथन द मरीन मैरिटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। तो उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया INS अजय को। तो ये लॉन्च किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। फिर आ जाते हैं जुलाई में फ्रॉम विच कंपनी इंडियन आर्मी ने रिसीव किया पहला बैच ऑफ 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स का। ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं एंड ऐसे 6 हेलीकॉप्टर्स होंगे जिसमें से पहले 3 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे ताकि इंडियन आर्मी की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। ये किस कंट्री से होंगे, USA से। फिर आ जाते हैं हरि कृष्णन A रा, ये बन गए इंडिया के 87 चेस ग्रैंड मास्टर, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द 8th मेंबर वर्किंग ग्रुप ऑफ ICC जो एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग टेस्ट क्रिकेट इनटू 2 टियर सिस्टम। मतलब 2 सीरीज हो जाएंगे, 2 चाहे वो बन जाएंगे आपके ग्रुप जिसमें से यहाँ पे इवेंट होते हुए दिखेंगे, नंबर ऑफ टीम्स भी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। ये 8 मेंबर का वर्किंग ग्रुप है जो कि हेड किया जाएगा संजोग गुप्ता के द्वारा। फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 4th लेग ऑफ द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर जो कि लास वेगस USA में देखने को मिलेगा। इसमें से ऑप्शन A सही है, C ऑप्शन सही है, तो राइट ऑप्शन इज A and C। फिर आ जाते हैं मुहम्मद बुहारी, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है किस कंट्री के जिनका रिसेंटली निधन हो गया, तो ये नाइजीरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिनका निधन हुआ। 2015 से 2023 तक ये इस पोजीशन में थे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर मेंशन ऑस्कर, ग्रैमी एंड एमी विनिंग अमेरिकन लिरिसिस्ट जिनका भी निधन हो गया 99 की एज में, वो हैं एलन J बर्गमैन। फिर आते हैं वेलिकाथु शंकरन अच्युथन VS अच्युथनंदन, इनका अभी निधन हो गया 21 जुलाई को। ये चीफ मिनिस्टर थे केरला के कब से कब तक, 2006 से 2011 तक, एंड ये ओल्डेस्ट सर्विंग यहाँ पे पर्सन बन गए थे जो चीफ मिनिस्टर थे केरला के। फिर आ जाते हैं हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये डे हम 15 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं हर साल। 10वीं एनिवर्सरी इस बार हमने ऑब्जर्व करी एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स। फिर आते हैं हर साल वर्ल्ड चेस डे जिसको हम इंटरनेशनल चेस डे के नाम से भी जानते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू सेलिब्रेट चेस एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंटेलेक्चुअल गेम्स। कब ऑब्जर्व करते हैं ये डे, 20 जुलाई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं एंड इसकी थीम याद रखेंगे एवरी मूव काउंट्स, ये यहाँ पे इसकी थीम रहेगी। फिर आते हैं किस इंडियन स्टेट ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट इंक्रीज इन ट्री कवर आउटसाइड नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की, रिलीज्ड इन जुलाई 2025। तो कौन सी है वो इंडियन स्टेट, वो है गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन भी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखी है क्योंकि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो ग्रो किया है, तो इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन इंक्रीज हुई है वो बताओ कितनी हो गई है। फिर एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि गोवा गुजरात में ही क्रूज टूरिज्म को फ्लरिश करने का काम किया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत होगा। नेक्स्ट, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स अभी, तो वो है एडेल सुमीरवाला। नेक्स्ट, नेम द वीमेन सेंट्रिक सेफ्टी इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा इन द चेनाब वैली रीजन टू एड्रेस अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम्स एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ वीमेन राइट। तो नेम द वीमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव वो है भरोसा। फिर आ जाते हैं पीटर मूर, इन्होंने अनाउंसमेंट की फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ये वो प्लेयर हैं जो 2 कंट्रीज़ के लिए खेले हैं, उन कंट्रीज़ का नाम बताओ, तो ये जिम्बाब्वे एंड आयरलैंड दोनों के लिए खेल चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज़ की एक रिपोर्ट फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम, रिलीज़ की गई जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं एंड उनका जो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है रिवर्स में एंड कोस्टल फ्लडिंग में, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया, वो है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ की गई। फिर आ जाते हैं किस कंट्री ने क्वालिफाई किया फॉर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इटली के द्वारा यहाँ पे क्वालिफाई करा गया।
राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड T20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा, इंडिया एंड श्रीलंका मिलके इसको होस्ट करेंगे। फिर आ जाते हैं शरावती वैली लायन टेल्ड मकाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट, एज पर फाइट्स मेंस वर्ल्ड कप रैंकिंग रिलीज्ड ऑन 10th of July, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियाज मेंस फुटबॉल टीम, तो इंडिया मेंस फुटबॉल टीम 133rd पोजीशन पे आती है वर्ल्ड में, टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट, इन जुलाई मेंशन द नेम द इंडिजीनियस डॉग ब्रीड, जो कि है फ्रॉम तंगुल कम्युनिटी इन उरुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, नॉन फॉर इट्स हंटिंग इंस्टिंक्ट एंड लॉयल्टी, जिसको भी रिकॉग्नाइज किया गया एंड प्रोक्योर किया गया बाय असम राइफल्स के द्वारा फॉर देयर डॉग ट्रेनिंग सेंटर इन जोरहाट असम, मतलब उनको अपनी सेना में जोड़ा गया है, उनको ट्रेन किया जाएगा, तो वो ब्रीड है हाउफा ब्रीड। Next, students, is our homework section, and the homework questions that I'm giving you, students, we have revised these questions right in the middle of the videos in the past few weeks, right? So tell me which country recently joined the IBCA, International Big Cat Alliance, and the total number of countries now. Second question, no helmet, no fuel. This was initiative launched by which state? Third question, which became the first state to implement Supreme Court order on stray dogs? Name that state. Fourth question, tell me recently, if I ask you, India is planning along with United Nations World Food Program to supply how much amount of what cereal, so that for the global humanitarian aid basically. Fifth question, tell me recently, which organization has launched a affordable housing finance under Anugraha brand? Anugraha brand. This is the name of the brand under which affordable housing financing has been launched. So name that organization or name that insurance company. I have give you the option very close here, right? Then apart from this, tell me for Tata Digital. This is your sixth question. For Tata Digital, who has been appointed as the new Chief Executive Officer and Managing Director. So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video.